why we study computer organization. First, what is computer organization? Why we needed computer organization? So computer organization is needed to organize the structural features of computers so that we can work efficiently. Okay. So that Anything? the work is efficient, like if there is no organization, then the computer cannot process or analyze the data or information given by the user properly, or cannot execute the operations properly. Okay. Anything else? Anything? Any other? Basically, whenever we start the session, first we know what is computer organization, why we study. So, Yes. computer organization focuses on the physical components of a computer system and how they are interconnected. Very good. Anything? और कोई? एंड सर इसमें मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन होता है ताकि परफॉर्मेंस को इनहेंस किया जा सके. मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन होता है? यस सर. नहीं बच्चे, मेमोरी का सिर्फ नहीं होता है, पूरे कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन होता है. हाँ हाँ. ओके. एनीथिंग एल्स? एनीवन वांट टू शेयर? Computer organization is how computers are built. It's the bricks of the building. Okay. Sir, we study computer organization for the fundamental of understanding how computer works. Okay. Yes. चलिए, there are two terms: computer organization and computer architecture. There are two terms. One term is computer organization and another term is computer architecture. Can you tell me what is the difference between these two words? Sir, architecture, that means conceptual designing of the मतलब conceptual designing होता है कंप्यूटर का, और organization उसका implement होता है. So computer architecture as a logically, sir, and the computer organization as we say that physically connected with the controller. Okay. Okay. Now, listen. No. Listen, computer organization basically it's a internal component of computers. Internal component of computers. That means how there are multiple computer components like CPU, you know the CPU, memory, input device, keyboard, mouse, these things. Memory means RAM and ROM. CPU, that means central processing units. And these are the, SMPS. yes, these are the main components. And CPU, basically you can say it's a brain of the computer. Memory, where can you store the data? Input devices, that means Give the instructions. where we can give the instructions.
For example, you can use keyboard, mouse, a scanner, these types of devices. Okay. A storage device like hard disks, SSD, output devices like monitor, printer. And these are the basically main component of the computers. Basically, in computer organization, basically how they are connected to each other, what is the structure, what is the behavior of these computer system is known as computer organization. Basically, computer organization basically एक स्टडी है जो कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में उसके स्ट्रक्चर और बिहेवियर को जानने के लिए, ठीक है, यानी हाउ दे आर ऑर्गेनाइज्ड। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। अब मैंने एक टर्म बोला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, यानी बेसिकली computer organization basically we discuss about the hardware details like RAM, ROM, hard disks, these things, while computer architecture basically how RAM is designed, how it works, how it is designed, how it is functionally work. That means you are talking about the CPU wiring. CPU wiring. This is the basically computer organization. But how they work, what is the instruction sets? This is computer architecture. That means what system does. This is the computer architecture. How basically system work, that is computer organization. That means we can say computer organization is the basically internal working of a particular computer. Basically they focus the hardware components and how they are interact to each other. And while the next question is why we needed computer organization, हमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली we need how the internal parts is actually work, how they perform their task, how they cooperate to task independently, how to communicate to each other. Basically, for this reason, we study computer organization. That means study number 1, how the internal work, yani how data is flow from CPU, main memory to external device or internal device, how to data is transferred to internal memory to external memory, how to improve new design, how to system improve your efficiency, how to optimize the speed. For this purpose, we can use computer organization. And how to basically use another hardware that particular system. That means हम कैसे एक नया हार्डवेयर भी उसमें इंक्लूड करें और उसमें डेटा कैसे ट्रांसफर करें, तो ये सभी के सभी हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पढ़ते हैं। यानी ओवरऑल इसका जो समरी की अगर बात करें तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन टेल्स द इंटरनल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, हाउ द वेरियस कंपोनेंट्स आर वर्क टुगेदर, how CPU, main memory, and other devices interact to different instructions, how they follow the instructions, how to improve their performance, and basically it also perform
how to troubleshoot if any error occurred, and how to maintenance. This is the basically needs of computer organization. Okay, now we come to the block. Basically your block is divided into 4 different parts. आपकी जो बुक्स हैं वो 4 different ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, और इसमें हर एक ब्लॉक का अपना अपना रोल है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारे पास नंबर ऑफ सेशंस कितने हैं? डू यू नो हाउ मेनी नंबर ऑफ सेशंस आर देयर? 6. 6 sir. 6 है, और 6 में हमें 4 ब्लॉक्स कवर करना है, जो, और हर एक में देखिए 100 पेजेस के आसपास है. It is not practically possible. Okay, we'll cover major topics, but इसमें भी different weightage होती है. हर एक ब्लॉक की क्या weightage होती है, and each block has its own weightage. Block 1, block 2, block 3, block 4. Block 1 is around 60 to 70% weightage. That is data representation and logic circuits. वो basically cover the around 80% as 60 to 70% of your examination. अगर आपने ब्लॉक 1 सही से कर लिया तो आपका एग्जाम पेपर बहुत आसानी से निकल जाएगा. और ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4, these are the basically mainly theoretical parts. तो हम लोग नेक्स्ट 2 to 3 क्लास में ब्लॉक 1 कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग फास्टली मूव करेंगे 2, 3, 4 ब्लॉक में. ठीक है सर Yes, आप sir. अगर आप ये क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल जो क्लासेस चल रही है उसमें अगर आप जल्दी कवर अप करा सकते हो, उसके बाद में भी इन क्लासेस को ले सकते हो कंटिन्यूएशन में क्लासेस में. मैं बता रहा हूँ हम लोग इसमें ओवरऑल टॉपिक कवर करेंगे. ठीक है, उसके बाद जो आपको टॉपिक पूछना होगा ना, उस पार्टिकुलर सेशन में हम लोग उसका आधा घंटा या 45 मिनट स्टार्टिंग के फिक्स कर लेंगे, हम लोग उसमें वो डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, ओके ओके सर. ठीक है. तो देखो, पढ़ाने के लिए हम 6 ब्लॉक में सारे पढ़ा देंगे, लेकिन वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप कितना समझ पाते हो. ठीक है, तो हम अब जैसे लाइनेक्स में हमारे पास नंबर ऑफ सेशन ज्यादा है, तो हम आपको पूरे प्रैक्टिस करने का टाइम देते हैं, डिफरेंट आपको क्वेश्चन कराते हैं. तो यहाँ पे हम एक ही क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन करा सकते हैं, ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं करा सकते हम. तो अगर हम आपको क्वेश्चन दे देंगे, उसमें आपको डाउट हो तो वहां पे आप पूछ सकते हैं. ठीक है, मैं वहां पे भी करवा दूंगा. ठीक है, ओके. नाउ कम टू द ब्लॉक 1. Block 1 basically divided into 4 different units. Unit 1 basically computer system. Second unit is data representation. Data representation around 5 to 10 marks for examination point of view. Unit 3 logical diagram, again 10 to 15 marks. Unit 4 again 10 to 15 marks. That means ओवरऑल 30 to 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे. ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम 30 to 40 मार्क्स के. ठीक है, तो यहाँ पे कवर हो जाएंगे. जो कंप्यूटर सिस्टम, जो बेसिकली ये यूनिट है, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे. हम यहाँ पे ये यूनिट कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, तो हम बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे जहां पे मेन आपकी हमारी जरूरत है. नाउ द फर्स्ट इज ब्रीफ स्टोरी. अब देखिए, व्हाट इज ब्रीफ स्टोरी? बेसिकली इट्स अ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स. ये भी कई बार एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. व्हाट इज जनरेशंस? दैट मीन्स this is the basically development of
computer, यानी how they change their architecture, change their speed in generation. जैसे आप लोग मोबाइल यूज करते हो, सबसे पहले क्या था, छोटा वाला मोबाइल आया था, उसके जो नोकिया 3310 था, उसके बाद थोड़े से एंड्रॉयड फोन आए, फिर आजकल देखिए बहुत हाई फाई जस्ट लाइक ए लैपटॉप की तरह आए। तो ये जनरेशंस होती है, उसी तरह कंप्यूटर्स के भी डिफरेंट डिफरेंट जनरेशंस होती है। अब ये कंप्यूटर की जनरेशंस क्या होती है उस चीज को देखिए। ये है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। दैट मीन्स बेसिकली evolution of the computer system, यानी कंप्यूटर सिस्टम का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए लिसन, द फर्स्ट टर्म इज पीरियड। पीरियड मीन्स सबसे पहले कंप्यूटर कब आया, उसकी क्या साइज थी, क्या इसमें मेमोरी यूज करते थे, तो ये बेसिक चीज होती है। मैं सिर्फ इसको रफली एक्सप्लेन करूंगा, इसमें हम कोई भी डिटेल पे नहीं जाएंगे। बेसिकली द फर्स्ट जनरेशन इज, नॉर्मली ये क्वेश्चंस आते हैं 5 to 6 मार्क्स के, एक्सप्लेन द कंप्यूटर जनरेशंस, तो वहां पे आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशंस लिखने होते हैं। यहाँ पे जो पीरियड लिखा हुआ है ये 100% परफेक्ट नहीं होते हैं, these are not 100% फिक्स्ड। अकॉर्डिंग टू बुक्स ये जनरेशंस भी आपके वेरी करते रहते हैं। ओके अब ये जनरेशंस कैसे होते हैं ये देखिए। द फर्स्ट जनरेशन इज 1940 to 1956। दैट मीन्स द बेसिकली टेक्नोलॉजी यूज्ड इज वैक्यूम ट्यूब। अब व्हाट इज वैक्यूम ट्यूब? डू यू नो व्हाट इज वैक्यूम ट्यूब? एनीवन, एनी आइडिया अबाउट वैक्यूम ट्यूब? बल्ब, सब बल्ब की तरह होता था सर। बल्ब की तरह? यस सर। नहीं, सर वो स्टोरेज के लिए यूज होता था। स्टोरेज के लिए? नो। फिल्मेंट ट्यूब। यस, व्हाट इज वैक्यूम ट्यूब? सर सर एक इलेक्ट्रिसिटी पावर कंट्रोल करने के लिए। पावर कंट्रोल करने के लिए? सर एक ट्यूब सी होती है जिसमें ना वो कांच की होती है, वो इन गोइंग और आउट गोइंग उससे इनपुट डालते हैं उससे। सर ये डिवाइस जो है इलेक्ट्रॉनिक, ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाती थी वैक्यूम के थ्रू, ग्लास वैक्यूम के थ्रू या फिर सिरेमिक कंटेनर के थ्रू, जो स्विच या फिर एम्पलीफायर के रूप में होता है। देखिए वैक्यूम ट्यूब बेसिकली एक ग्लास कोटेड ट्यूब होती है, जैसे लंबे लंबे सिलेंडर्स होते हैं ना, जस्ट लाइक ए सिलेंडर, वो ग्लास ट्यूब से बने होते हैं, यानी ग्लासेस से कोटेड होते हैं। ठीक है, जो बेसिकली आउटसाइड जो भी एयर्स होते हैं उससे वो बेसिकली डिस्कनेक्ट करता है। जो अंदर एयर है उसको अंदर ही रखेगा, बाहर एयर है उसको बाहर ही रखेगा, यानी बेसिकली इट बेसिकली कंट्रोल द जो करंट होती है, जो इलेक्ट्रिक करंट्स होती है उसको ये मैनेज करता था। इट्स बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अकॉर्डिंग टू इसकी अगर हम इसकी साइज जो बात करें, ये साइज बड़े बड़े बिग साइज, साइज इज वेरी लार्ज, टू लार्ज। अगर हम फिजिक्स के टर्म्स की बात करें तो आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सारे टर्म्स सुने होंगे। सुना है, सुना है। तो ये सारे टर्म्स यहाँ पे यूज होते हैं। अब मैं यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कैथोड नहीं होती, तो यहाँ पे आपको सिंपल आपको जानना है कि वैक्यूम ट्यूब इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज कंट्रोल द इलेक्ट्रिक करंट। यानी बेसिकली वैक्यूम ट्यूब क्या है? इट्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज बेसिकली कंट्रोल
कंट्रोल द इलेक्ट्रिक करंट। इसका चैट है भाई। यस, ओके। तो ये वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं जो बेसिकली फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में यूज होते हैं। ये बेसिकली कंप्यूटर्स के लिए यूज किए जाते हैं और बेसिकली इट मैनेज द बेसिकली कंट्रोल द, यू कैन से कंट्रोल। आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा एम्पलीफायर लगाते हैं, एसी वगैरह चलाते हैं तो उसमें कुछ एम्पलीफायर लगाते हैं ना। तो बेसिकली हाई वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए फ्रिज में भी हम लोग यूज करते हैं, यू कैन यूज द फ्रिज। तो ये बेसिकली ये हाई वोल्टेज को कंट्रोल करता है। दिस इज द बेसिकली it's a vacuum tube. That means here we can use the technology is vacuum tube, and it basically its capacity is 20 kb. And overall one computer consists of only 20 kb data. Can you imagine? 20 GB data, 20 kb data में आपका क्या होगा? अगर आपको मोबाइल 1 GB से लेस का दिया जाए तो क्या होगा? एक दिन में आपका डेटा फुल हो जाएगा। तो सोचिए जो 1940 टू 1956 में जो कंप्यूटर्स आए थे, ओनली उसकी जो मेमोरी कैपेसिटी होती थी 20 kb, और उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती थी 300 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, और ये नॉर्मली मशीन लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। व्हाट इज मशीन लेवल लैंग्वेज? द नेक्स्ट टाइम इज मशीन लेवल। अब लैंग्वेज मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, देयर मल्टीपल लैंग्वेज, machine level, assembly level language, high level language. Machine level is also known as low level language. अब ये machine level language क्या होते हैं? जीरो और वन के फॉर्म में होते हैं सारे instructions। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए मशीन लैंग्वेज क्या होता था? फर्स्ट व्हेन कंप्यूटर इज स्टार्टिंग, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 0 and 1, and 0 means off, 1 means on, and each and everything written in form of 0 and 1. अब इसमें डिमेरिट्स क्या थे? सबसे पहले डिमेरिट्स है कि सपोज करो अभिषेक सोनी इज ए प्रोग्रामर फॉर मशीन लेवल लैंग्वेज, और ईच एंड एवरी कोडिंग इज रिटन इन मशीन लैंग्वेज। तो अभिषेक सोनी ने क्या किया? अपने हिसाब से 0 1 को कुछ भी मान करके 1 लाख लाइंस के कोड लिख दिए, और इसे लिखने में करीबन इसको 5 साल लग गए। ठीक है, इसने एक कंप्यूटर सिस्टम इज जनरेटेड इन न्यू कंप्यूटर सिस्टम एंड न्यू लैंग्वेज दैट इज नोन एज मशीन लैंग्वेज। आफ्टर 5 years Abhishek Soni left the job, or then Mr. Nakul joined this organization. Then as senior manager said, just increase the features, enhance the some features, या some modify the features. तो अब उसने क्या किया? अब नकुल क्या करे? उसको कोड को समझने के लिए उसे 2 साल और लग गए, क्योंकि इन्होंने अभिषेक सोनी ने अपने अकॉर्डिंग कोड लिखी थी 0 1 1, ईच एंड एवरीथिंग रिटन इन फॉर्म ऑफ 0 1। तो नकुल को समझने में टाइम लगा। तो ये इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट थी। यानी अगर आई एम ए प्रोग्रामर, I can understand only, no other person can understand, but not so easy. Okay, now this is the machine language. तो इसके लिए हमने जनरेशंस यूज किए। उसके बाद आए machine language, that is we use only 0 and 1. After that we can use 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 digits, and we can use all alphabets like A B C D and सर इन बाइनरी नंबर ना, number system is different. हम अभी आएंगे उस पर। डेसिमल नंबर। जस्ट वेट बच्चे, जस्ट वेट। जितना बता रहे हैं आज ही की क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे, डोंट वरी।
assembly language, basically it's a combination of alphanumeric. That means it contains numbers and alphabets. Okay. Binary digits never use alphabets. Okay. तो यहाँ पे हमने एक अलग लैंग्वेज यूज किया, मशीन लेवल, ये असेंबली लेवल लैंग्वेज. मशीन लेवल से थोड़ा सा हायर यूज किया. मशीन लेवल में हमने क्या यूज किया, 0 and 1, यानी ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन इन 0 and 1 फॉर्म. बट असेंबली लैंग्वेज वी कैन यूज सम, यानी 0 1 को हम एक्सटेंड करके 1 to 9 पे ले गए, 0 to 9 एंड अल्फाबेट्स. तो दैट मीन्स हमारे कॉम्बिनेशंस बनाने थोड़ा आसान हो गए. दैट इज असेंबली लैंग्वेज. अभी आपको हम जब ये सेशन खत्म होगा, यानी 6th सेशन में हम आपको बताएंगे हाउ टू असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम. ओके. तो वहां देखना सिर्फ 0 and 1, 0 to 9 डिजिट्स और डिफरेंट अल्फाबेट्स का यूज करके हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे. सर एस्काई वैल्यू हो सके वो? रुक जा बच्चे, रुक जा. एस्काई वैल्यू डिफरेंट होती है. अभी आ रहे हैं नंबर सिस्टम, अभी आ रहे हैं ना, उसी में आपको ये डिस्कस होगी. तो ये जो इस कॉम्बिनेशन से जो भी यूज किए, दैट इज नोन एज असेंबली लैंग्वेज. अब क्या हो रहा था कि अब नकुल ने क्या किया, एक हाई लेवल लैंग्वेज डिजाइन कर दिया. अब उसमें 0 1 की जगह पे 0 to 9 डिजिट्स यूज किया और फिर अल्फाबेट्स भी यूज किया. दैट मीन्स इट्स इजीबल, अंडरस्टैंडेबल, यानी अब हर कोई इसको प्रोग्रामर उसे अंडरस्टैंड कर पा रहे थे. देन लेकिन फिर से कोई और पार्टिकुलर आपके फ्रेंड्स आए. जब नकुल छोड़ गया तो विशाल आ गया जॉब पे. अब विशाल को भी अंडरस्टैंड, जहां पे नकुल को 2 साल लगे, इनको विशाल को लगे करीबन 6 महीने उसको अंडरस्टैंड करने. तो इन्होंने एक और लेवल लैंग्वेज यूज किया, जहां पे हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट्स को यूज किए जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं, लाइक सी, C++, फॉर्टन. ये सारे लैंग्वेज हमने यूज किए. फॉर्टन नहीं, पाइथन वगैरह यूज किए, जहां पे हम जैसे आप लोग यूज करते हो ना, इफ कंडीशंस यहाँ पे यूज करने लगे. इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, दिस कॉन्सेप्ट वी कैन यूज. तो ये है आपका जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये जनरेशन वाइज पहले क्या था, मशीन लेवल लैंग्वेज, फिर असेंबली लैंग्वेज, फिर नेक्स्ट जनरेशन वी यूज C++, हायर लैंग्वेज C++, जावा वी कैन यूज. नाउ वी कैन यूज AI. Now we are in 5th generations. For Python. Yes. Okay. So you can easily understand what is the period. You can see the period 1942-56, 1956 to 63, 1964 to 71, 71 to present. Yani basically 1971 to, it's basically 1994-95. It's a 4th generation. After 95th, we are in 5th generations. जहां पे we can use, अगर हम according to technology की बात करें, according to technology, in 1st generation we use vacuum tube. After that we can use transistor. Then 3rd generation we use chips, IC. After that we can use microprocessor. Then we can use ULSI. These are the basically processor families. Okay. Now we can use, see the generation wise, we increase the capacity. Processing speed, again we increase the processing speed. 1st generation is very low, 2nd generation is higher, 3rd generation is more higher, 4th generation is more higher, and now you are in very fast mode. And this is the basically, these are the generation wise computer explanation. Okay. This is the basically generation of the computers. Now, here we can see the structure of the computer. What is the structure of the computer? ये भी important होते हैं, कई बार ये short notes 5 marks के questions आते हैं. What is the structure of computer?
computer. And this structure is designed by John von Neumann. आपने नाम सुना होगा, John von Neumann. This is the person who designed the basically structure. In this structure, we can see input device. Here you can see this is the input device. Here is the output device. And this is the CPU. And CPU basically divided into three parts: control units, memory units, and ALU. See, it's control unit, ALU, memory unit, and here you can see main memory. This is the basically it's a architecture of the computer. अब यहाँ पे देखिए एक चीज देखने की जरूरत है, फ्लो ऑफ डेटा कैसे होती है. व्हाट इज द फ्लो ऑफ डेटा इन कंप्यूटर? तो आप बता सकते हैं सबसे पहले डेटा कहाँ पे जाती है? कंट्रोल यूनिट. सबसे पहले डेटा कहाँ से आती है आपके? इनपुट डिवाइस से. इनपुट से. इनपुट डिवाइस. वेरी गुड. आफ्टर दैट मेमोरी यूनिट. CPU. कंट्रोल यूनिट. it's a CPU. Yes. First is input device, second is Central processing. CPU, and third one is output device. device. Okay, so that means basically input device is used for enter the data. You can use keyboard, mouse, scanner, barcode reader, like different processing. It basically CPU. अब CPU is divided into multiple components. Three multiple components. Component. That is control unit, Memory ALU, unit and memory unit. And arithmetic logical unit. Yes, memory unit also is divided into temporary memory and primary Primary memory and secondary memory. main memory. Okay. Now, अब आप मुझे ये बताइए सीपीयू में डेटा फ्लो कैसे होता है? अभी हम लोग उतने नहीं जाएंगे डिटेल. सबसे पहले डेटा किस में जाती है? कंट्रोल यूनिट. There are three units: Memory unit. ALU, control unit, memory unit. Okay. ठीक है, तो सबसे पहले डेटा किस में जाती है? कंट्रोल यूनिट या मेमोरी? कंट्रोल यूनिट. बाय डिफॉल्ट डेटा कंट्रोल यूनिट या मेमोरी? Sir, memory. कंट्रोल यूनिट. ओके, आपके हिसाब से कंट्रोल यूनिट और किसी के हिसाब से मेमोरी यूनिट. आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले डेटा आपका कहाँ जा रहा है? इनपुट डिवाइस से सीपीयू में जा रहा है. सीपीयू से आप डायरेक्शन अगर आप ध्यान से देखो, कोई भी डेटा सबसे पहले कहाँ पे जा रही है? कंट्रोल यूनिट में जा रही है. देखिए यहाँ से डेटा कंट्रोल यूनिट, यानी आफ्टर इनपुट द डेटा गोज टू कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट से इनटू there are multiple things: clock signal, logic, control signals, and logic it passes through arithmetic and logical unit. Control signal passes to memory unit, and that means input से जब भी आप कुछ भी input करते हैं तो by default data आपके control unit में जाती है. Control unit will decide where data will go. अगर उसमें arithmetic and logical operations करने हैं तो अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन करके मेमोरी यूनिट में जाएगा. अगर इसने ये डिसाइड किया नहीं मुझे डायरेक्ट मेमोरी यूनिट में डेटा सेंड करनी है, तो इट गोज टू डायरेक्टली कंट्रोल थ्रू कंट्रोल सिग्नल टू मेमोरी यूनिट. ओके सर, व्हाट इज क्लॉक सिग्नल? बता रहा हूँ. अब डेटा कौन सा फ्लो जाएगा? जब फ्लिप फ्लॉप आएगा ना कि 0 है या 1 है, अभी इसका स्टेट क्या है? What is the states? That is known as clock signal.
basically it show the status of the unit, that is clock signal. क्लॉक सिग्नल बेसिकली क्या होता है कि किसी भी स्टेज का स्टेटस बतलाता है। जैसे आप देखोगे सपोज कीजिए आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं, अगर ऑलरेडी बिजी है तो वहां पे बिजी का बोर्ड लगा होता है, ठीक है, और फिर जब लंच टाइम होगा तो लंच टाइम का बोर्ड लग जाएगा, वेस्टिंग आवर होगा तो वेस्टिंग आवर का बोर्ड लग जाएगा। बेसिकली क्लॉक signal is the basically sequence of pulses that control timing of operations। जैसे किसी भी ऑफिस में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, तो 10 बजे उसका काउंटर खुलता है, तो पहले गेट तो खुला होता है लेकिन सिर्फ स्टाफ्स के लिए होते हैं, कस्टमर्स के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पार्टिकुलर डे में ट्रांजैक्शन के लिए फिर वो पार्टिकुलर काउंटर ओपन होता है कि आप यू कैन डू दैट ट्रांजैक्शन। आफ्टर दैट 4 o'clock ट्रांजैक्शन वो बंद कर देते हैं, तो फिर वो क्या कर देते हैं, क्लोज्ड। यानी दीज आर द सीक्वेंस ऑफ पल्सेस, यानी काउंटर ओपन करना, ओपन फॉर कस्टमर, फिर लंच टाइम, फिर क्लोजिंग काउंटर, उसके बाद बैंक अपना इंटरनल काम करते हैं। दीज आर द पल्सेस, ये आपको कंट्रोल सिग्नल बताता है। यानी क्लॉक सिग्नल बेसिकली सीक्वेंस ऑफ कमांड्स होते हैं जो किसी भी कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शंस है उसकी साइकिल को मैनेज करता है। पहले क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा। यानी वी कैन से किसके बाद कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये डिसाइड करता है क्लॉक सिग्नल। ओके, नो No. सर, समझ में नहीं आया सर। नहीं समझ में आया? यस सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कन्हैया। कन्हैया। ये बताओ आप मीटिंग में कितने बजे ज्वाइन किए? सर 5 बजे। ठीक, इससे पहले क्या कर रहे थे? इससे पहले मतलब इससे 5 से पहले क्या कर रहे थे आप? जब से ज्वाइन मतलब स्टार्ट हुआ क्लास तब नहीं, तब से मैं आपसे आज आपकी फुल डे का मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपका हाँ फुल डे का अपना शेड्यूल बताइए। फुल डे का क्या है सर, दीदी के साथ था, दीदी के साथ मार्केट में गया था। ठीक, अब आप 5 बजे ही यहाँ पे क्लास पे क्यों ज्वाइन किए? क्योंकि इम्पोर्टेंट था, पढ़ना था इसलिए। लिसन लिसन मेरी बात सुनो, थोड़ा सा सोचने का तरीका बदलो। ठीक है। अब आपके पास आज के डे में डिफरेंट डिफरेंट वर्क है, ठीक, क्लास भी आपका एक वर्क था। हाँ। तो दीज आर द बेसिकली वर्क्स। अब कौन सा काम कब होगा ये आपने डिसाइड कैसे किया? वो टाइमिंग के बेसिस पे किया ना। अच्छा हाँ। तो दैट इज क्लॉक सिग्नल। जब क्लॉक सिग्नल यानी वो पार्टिकुलर, आप इस टाइम पे क्यों ज्वाइन किए? क्योंकि आपके लिए तो पार्टिकुलर पल्सेस थे, लेकिन जो टाइम जो मैच किया, तो अब उस वक्त आपको बाकी मार्केट का काम छोड़ करके आपको क्लास ज्वाइन करना था, इसलिए आपने हाँ। ज्वाइन कर दी। तो दैट इज द सीक्वेंस ऑफ कमांड्स, और वो अच्छा। कब कौन सा परफॉर्म होगा ये डिसाइड किसके थ्रू होगा? क्लॉक सिग्नल। क्लियर है? बेसिकली ये हार्डवेयर के बीच में, कंपोनेंट के बीच में जो कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। जैसे कि बेसिकली यही होता है कि हम कौन सा, हमारे पास लॉट ऑफ ऑपरेशंस है, उनमें से कौन सा वर्क कब परफॉर्म होगा। अच्छा। ठीक है, जैसे आप क्लास 7 भी पढ़े होंगे, क्लास 8 भी पढ़े होंगे, 9 भी पढ़े होंगे, 11 12 सारे पढ़े होंगे। अब 10th में आप ट्यूशन पढ़े होंगे, साइंस का भी, मैथ का भी, इंग्लिश का हाँ। भी पढ़े होंगे। तो कौन सा कितने बजे पढ़ेंगे, या आपको सारे पढ़ने हैं, लेकिन कौन सा कितने बजे पढ़ेंगे, इसका आपका एक टाइमिंग होगा ना। हाँ। वो डिसाइड क्या कर रहा है? क्लॉक सिग्नल। यानी ये टाइमिंग आपको मिल गई तो आपको ये वर्क परफॉर्म करना है। यहाँ पे क्लॉक सिग्नल भी ये कह रहा है कि अगर हमें डेटा को अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में सेंड करना है तो लॉजिक वाला एक्टिवेट हो जाएगा। अगर डेटा मुझे डायरेक्टली मेमोरी में सेव करनी है तो वो वाला एक्टिव हो जाएगा। यानी अच्छा। कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा
that will be decided by the clock signal. Okay. समझ में आ गया? Yes, yes. ठीक है, तो कभी भी मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, तो उसके हिसाब से सोच के बोला करो, ठीक है? Yeah. क्योंकि मैं आपको समझ में तभी आएगा जब हम आपका एग्जाम्पल देंगे। अब सर मुझे समझ में नहीं आया था उस वक्त, आपने मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था। अब समझ में आ गया ना? हाँ हाँ, आप सही है। ठीक है, यानी Thank you, दैट मीन्स डेटा सबसे पहले इनपुट डिवाइस में जाती है, इनपुट डिवाइस के बाद कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि हमें किस तरह का ऑपरेशंस करना है, अर्थमेटिक या लॉजिकल। अब एनीवन टेल मी व्हाट इज द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट? Sir, it perform all the calculation parts like multiplication, division, No. subtraction, and addition, and modulus. No, my question is what is the difference between arithmetic and logical operations? सर अर्थमेटिक में जो कैसे कि मैथ के फॉर्मूलाज उस टाइप के क्वेश्चन है, और लॉजिकल में कैसे कि कोई भी काम करने का तरीका है वो। एग्जाम्पल दो प्रियांशु। सर कैसे कि अर्थमेटिक में तो जो फॉर्मूला है ही, और लॉजिक का एग्जांपल है कैसे कि अब मुझे कोई फाइल खोलनी है। ओके प्रियांशु, ओके नेक्स्ट, एनी अदर? तो जैसे कंपेयर करने के लिए दे देगा तो फिर लॉजिक आ Sir? जाता है वहां पे। यस, वेरी गुड वेरी गुड। सर वैसे ही देखिए। मैं बोलूं, बोलिए बोलिए ध्रुव। सर जैसे कि अरिथमेटिक के अंदर तो मैथ्स के फंक्शंस वगैरह होते हैं, और लॉजिकल वाला वो होता है जिसके अंदर ट्रू फॉल्स वगैरह सब का होता है ना। वेरी गुड वेरी गुड। जैसे एक सिंपल सी बात है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दीज आर द अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ओके, a plus b, 2a plus b, these are the arithmetic operations. Logical operation, that means which basically perform a particular certain, like if else, if this condition is true, then this will be happen. If time is equal to 5 o'clock and date is 19, then CO class will be start. Else other class, that is the logical. आप कहीं जा रहे हो, डेली तो वहीं नहीं जाते हो ना, सैटरडे संडे आप घर पे रहते हो, सैटरडे संडे आपको ऑनलाइन क्लास करनी है तो पार्टिकुलर टाइम पीरियड आपको मिला, इसलिए दीज आर द लॉजिकल। जहां पे इफ कंडीशन यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड लॉजिकल, एंड और जहां भी यूज करेंगे दीज आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स। Less than, greater than, these are the logical operators. Double ampersand, these are the logical operations. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. No. Yes, sir. No. Next is after that, control unit के बाद data arithmetic and logical operation if required, then otherwise goes to memory unit. Memory unit, अब यहाँ पे दो तरह के टर्म्स होते हैं, इंटरनल रजिस्टर, कैश मेमोरी। यस, इंटरनल मेमोरी मीन्स प्राइमरी मेमोरी, एंड व्हाट इज कैश मेमोरी? कैश मेमोरी सर बेसिकली वही होता है जैसे कि हम कोई भी वेबसाइट पे या कुछ भी पे जो सर्च करते हैं, वो एक टेम्पररी टाइप में डेटा को स्टोर कर लेता है, जो कि बाद में अगर हम सर्च करते हैं वो हमें सामने दिखा देता है, जिससे हम बार बार उसे लेकिन टाइप ना कर सकते, डायरेक्ट सेलेक्ट करके एंटर कर सकते। यानी बेसिकली यू कैन से कैश मेमोरी इज द टेम्पररी मेमोरी which is accessed frequently, which जो भी आप एक्सेस फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं उसे उसने क्या किया, कैश मेमोरी में कर दिया, दैट इज नोन एज कैश मेमोरी। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि वही डेटा जाएगा, जो भी आप लगातार यूज कर रहे हो वो आपका डेटा कैश मेमोरी में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब डेटा मेमोरी यूनिट में गया, इंटरनल में गया, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक कैश को मैनेज करता है। इंटरनल मेमोरी के पास
we can save your data into main memory. You can save. After that, data goes to cache memory and again back to output device. Okay, this is the basically architecture of computer. Now, this is the one of the important part. This is then, you know, the units. Units basically क्या होता है? Unit, हर एक चीज को डिफाइन करने के लिए यूनिट्स होती है. If you go to the market, if you want to purchase vegetables, we can purchase in form of kg. If you go to milk shop, then we use liter. For if you are going to market to purchase some cloth, we can use meters. Similarly, अगर आप कोई भी डेटा, अगर कंप्यूटर में कोई डेटा आपको एक्सेस करनी है, तो वी कैन यूज बाइट्स इन टर्म्स ऑफ बिट या बाइट. द स्मॉलेस्ट यूनिट इज बिट. One bit, that means 8 bit equal to 1 byte. 8 bit equal to 1 byte. Okay, the smallest unit is byte. And one another term is nibble. Nibble is the basically 4 bit is equal to 1 nibble, and 2 nibble equal to 1 byte. Yeah, we can say 8 bit equal to 1 byte. Similarly, then next highest element is 1 kilobyte. 1 kilobyte, any 1024. 1 kilobyte equal to 1024 bytes. We can write as a 1000. Then next highest unit is megabyte, MB. That means 2 KB, 2 to the power 10 KB, and 2 to 20 to the power 20 bytes. Similarly, 1 gigabyte, and 1 gigabytes means 1000 megabyte. फिर next highest unit is terabyte, pentabyte. अभी तक आप लोगों ने सुना होगा किलोबाइट सुना होगा, मेगाबाइट सुना होगा, गीगाबाइट सुना होगा. आजकल टीवी में आ रही है कंप्यूटर हार्ड डिस्क, that is terabytes. Next higher unit is pentabytes, exabytes, zettabytes, yottabytes. तो ये चीज इससे नोट कर लीजिएगा और इससे याद रखिएगा. कई बार आपसे अभी तो हम लोग नॉर्मली वी कैन यूज टेराबाइट्स. कुछ लोगों ने सुना होगा पेंटाबाइट्स, लेकिन योटाबाइट्स शायद ही किसी ने सुना होगा. इसे याद करने का सिंपल सा तरीका है. 1 किलोबाइट मीन्स 1000 बाइट, तो 1 मेगाबाइट मीन्स 1000 किलोबाइट्स. 1 गीगाबाइट्स मीन्स 1000 megabytes. 1 terabytes means 1000 gigabytes. Okay, 1 petabytes means 1000 terabytes. So on कर लीजिए, we can easily remember. ये जो फॉर्मेट दिया हुआ 20 बाइट्स, इसको फॉर्म में याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, वो याद कर लीजिए, वो आपको समझ में आ जाएगा. अब यहाँ पे 2 to the power 10 क्यों लिखा जाता है? Anyone can tell me why we can use 10 bytes? 2 to the power 10. सर वो बाइनरी और डेसिमल से ऐसा कुछ कनेक्शन है इसका. यस, बिल्कुल सही है. इट्स बाइनरी एंड डेसिमल. अभी हम लोग देखते हैं इसको. ठीक है, ओके. ये आपका बेसिकली कंप्यूटर में फ्लो होती है, डेटा सीपीयू में कैसे फ्लो होती है, इस चीज को दिखाया गया. मेन मेमोरी है, मेमोरी रजिस्टर्स है, इसको दिखाया गया. ये सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. इनपुट डिवाइस, इस पर टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है. ये भी हमने ऑलरेडी देख चुका. ये रिस्क हम लोग अभी 5th यूनिट में पढ़ेंगे, इसकी डिटेल वर्जन पढ़ेंगे. रिस्क क्या होती है, सिस्क क्या होती है.
चलिए अब यहाँ पे हमारा मेन वर्क शुरू होता है, डेटा रिप्रेजेंटेशन. Data representation, basically how we can represent data into the computer. That means हम कंप्यूटर में डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होते हैं. अभी आप लोगों ने डिस्कस किया था अमेरिकन ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. Basically it's a standard. If you want to display or represent any character in a computer, we always use American Standard Code for Information Interchange. यानी basically it's एक फॉर्मेट है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में वैलिड होता है, इसलिए इसको हम लोग यूज करते हैं ASCII. There are lot of representation techniques are there, बट हम लोग यूज करते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन क्योंकि ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है. इसके अलावे जो और भी होते हैं यूनिकोड, ISCII, ये भी यूज करते हैं, लेकिन ग्लोबली एक्सेप्टेबल है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. अब ये कोड क्या होते हैं? सपोज कीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 0, ये हमने लिख दिया 0 1 2 3 4 5 और इसका हमने मीनिंग मान लिया AB, एक कोड इसका बना दिया, इसका एक BC कोड बना दिए. कोड हमें बनाना है तो वी कैन मेक एनी कोड. ठीक है, 2 मीन्स हमने बना लिया AC, CZ, हमें बनाना है, कुछ भी कोड बना सकते हैं. दैट मीन्स 2 मीन्स हम क्या समझेंगे, इट्स a CZ. बट ये जो कोड है ये सिर्फ मेरे लिए वैलिड है. क्या आपको ये कोड समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा. दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर मी, बट ये ग्लोबली एक्सेप्टेड नहीं होते. तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, जो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कमिटी बनाई गई और एक उन्होंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया कि हम किसी भी पार्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक कोड यूज करेंगे, और इस कोड को हम कहते हैं ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. अब ये कोड में क्या होता है इस चीज को देखिए. जैसे कंप्यूटर ऑलवेज रीड 0 and 1, चाहे कोई भी लैंग्वेज यूज कर लीजिए, कंप्यूटर हमेशा सिर्फ 2 ही भाषा समझता है, या तो 0 या 1. उसके अलावा उसे कुछ भी समझ में नहीं आती है. तो यहाँ पे ईच कैरेक्टर्स को एक पार्टिकुलर नंबर हम असाइन कर देते हैं. ईच कैरेक्टर को हम एक पार्टिकुलर नंबर असाइन करते हैं. सपोज कीजिए इन अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में ए मीन्स अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में ए का मीनिंग जो है कैपिटल A इक्वल टू 65 होता है. ठीक है, लेकिन कंप्यूटर नेवर अंडरस्टैंड 65. कंप्यूटर नेवर अंडरस्टैंड A. कंप्यूटर क्या समझता है? ओनली 0 या 1. लेकिन हम अपना whenever we type ANIL अपना नाम टाइप करते हैं, कंप्यूटर इसको समझ जाता है. कैसे समझता है? दैट मीन्स A मीन्स वो 65 समझता है. A मीन्स 65. तो N का मीनिंग क्या होगा? 65 से प्लस करते जाइए, जो अल्फाबेट्स आएगा वो नंबर वो समझेगा. तो उससे N का मीनिंग क्या हुआ? N का मीनिंग क्या हुआ?
79. चलिए या इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं, इसे बेटर हम समझने के लिए यूज कर लेते हैं। ABC, ABC, अगर ABC हम टाइप किए हैं तो A मीन्स 65, B मीन्स 66 और C मीन्स 67। और मैंने कहा कि कंप्यूटर ऑलवेज अंडरस्टैंड बाइनरी वर्जन, दैट मीन्स C 65 इट्स अ डेसिमल नंबर, इट्स अ डेसिमल नंबर। कंप्यूटर इसे क्या करेगा, इसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा। और 65 का बाइनरी नंबर क्या होगा, समथिंग लाइक 1 के आसपास होगा। ठीक है, अभी ये कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और 66 डेट मीन उसके बाइनरी नंबर को, तो डेट मीन्स उस 65 को कंप्यूटर ऑलवेज कन्वर्ट इनटू बाइनरी नंबर। वो बाइनरी नंबर कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे ये पार्टिकुलर स्टैंडर्ड कोड बनाया गया है। यानी ओवरऑल वर्ड में कोई भी आप कंप्यूटर की, एनीवन कैन यूज द कंप्यूटर, दे यूज 65 मीन्स कैपिटल A, 66 मीन्स कैपिटल B, 67 मीन्स कैपिटल C। ओके, अगर हम स्मॉल a यूज करें, दैट मीन टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर, 26 अल्फाबेट्स। Yes, then sir. then a small letter A means 97. Okay, we can use at the rate symbol. At the rate symbol means 64, that means 64 को डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, फिर उसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, तो इसी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें नंबर सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, देखिए नंबर सिस्टम्स, यहां से आपके बेसिकली क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। यहां से क्वेश्चंस, नंबर सिस्टम, वी कैन सी there are normally 4 types of number systems are there. Number system normally 4 types के होते हैं, Binary, decimal, hexadecimal और ऑक्टा नंबर सिस्टम। octa. yes. अब यहाँ पे हमें इसकी कन्वर्जन आपको बताएंगे, डेसिमल में कन्वर्जन कैसे होती है, वो सारी चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको जान लीजिए। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स। फोर टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है डेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल मीन्स, डेसी मीन्स 0 to 9। डेसी मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेसी? डेसी मीन्स 10, यानी डेसी डेसिमल नंबर कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स, यानी इट्स नोन एज बेस, बेस इज 10. okay, and numbers are 0, 1, 2, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are the unique numbers. That means decimal number system means its base is 10 and numbers are 0 to 9. The next number system is बाइनरी नंबर। binary. Binary number system. What about its base? 2। Base. Decimal 2। number, deci means 10, binary means 2, and numbers are 0 1। numbers are 0 and 1.
Both are unique numbers. Okay. The next number system is Octal number system. octal. Octal number system. Octal means 8. 8. Then 8 unit digits are base is 8. 0 1. हाँ. Base numbers are 0 to 0 7. to 7. 0 to 7. 7 digits हो गए. Okay. Yes. Now next number system is Hexadecimal. 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 What is the meaning of hexadecimal? Hexa means 16. hexa means 6, or deci means 6. That's deci means 10. 10 and 6. 16. 16. Total 16. Then base is 16. 16. Okay. तो अब हमें क्या लिखने हैं? 16 unique digits लिखने हैं. So what are the 16 unit digits? 0 to 15. 0 to 9, then A to F. 0 to 9 and then A to F. 6, 7, 8, 9. Okay. अब मुझे ये बताइए, हम यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट 10 क्यों नहीं लिखे? Why we not writing 10? Sir, that will be binary then. So here we can see 0 in also is the part of binary. Yes. No. 0 1, if you are writing 0 1 0, that means it's not a unique number. It's a combination of 0 and 1. Okay, that's why you cannot use 1 0 1 1 1 2. For uniqueness, A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. And here we can see, for understanding, A means 10, 11. B means 11, 11. 12. C means 12, 13. Actually, 15. 13, 10 to 13. E14. E 14, F16. F 15. Okay, that Yes, sir. means we are 4 number systems: decimal, binary. एक मिनट. octal. एक अब यहाँ पे देखिए, डेसिमल we can use 0 to 9, binary means base 2, octal means base 8, hexadecimal means base 16. Okay. Now, for examination point of view, there are multiple types of questions are there. Just giving the any number, like this type of questions is normally asked, like questions जो normally होते हैं, 10, it's a number system is 10. We can convert into binary. We can convert into octal. We can convert into hexadecimal. Just wait. Sir, in this number, first number is 10. Just wait. वेट करो भाई.
For binary key or octal is we can, for hexadecimal we can use same process. Now we see the process. Number is 18. Now first we convert into binary number. Okay. Number is 18. Just we divide which format we want to convert. We want to convert into binary. Then we know the binary base is 2. Divide, after dividing, it's a 9. 9 into 2, 18. Remainder is 0. Again we are dividing. 2. It's 4. Remainder is 1. 1. Same. Again we are dividing. 2. 2. 2 into 2. 0. 0. Again we are divided from 2. 1, 0. If value is less than that particular base number, then we stop this process. And okay, then write in this way. That means binary number is 0 1 0 0. No. 1 0 0 1 0. 1 0. अच्छा नीचे से It's a binary number. Sir, 1010. We are writing this number first. Sir, 1010. ये क्या बोल सर सर ये 1010 होगा या 10010 होगा सर? 34. क्या बोल रहे हो बताना, फिर से बोलो। सर ये 10010 होगा या 1010 होगा सर? 10010 होगा। इन दिस वे, इस वे में लिखिए 1 1, ये पहला नंबर, पहला डिजिट, ये दूसरा डिजिट, ये तीसरा, ये फोर्थ वन, and this is fifth number. Okay. Yes. Yes. Any doubt? Sir, I have a question. Yes, tell me. Yes, प्रशांत बोलिए। सर आपने 1 के बाद क्या किया है? अब ये इसकी बात कर रहे हो? यस सर। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है कि 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखते हैं ये डिजिट्स। मैं आपको एक नया एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, ठीक है, कोई भी नंबर बोलिए। न्यू नंबर इज, कोई नया नंबर बोलिए। 64 64, वेरी गुड। अब इसे अब ये 64 है, वी कैन यूज लाइक दिस। मुझे किस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है? इन विच नंबर सिस्टम? इनटू बाइनरी नंबर। बाइनरी बेसिस 2, just we are writing 2. Here we can write 32. What is the remainder? It's 0. Okay, what about the next number? 2.
it's a 16. Remainder is 0. 0. Next, 2. It's 8. It's a 0. 2. 4. It's a 0. 2. 2. It's 0. 2. 1 2 0 1, and it's a 0. In this way, we write binary number like 1 1 0 0 0 0 0 0 0 यानी 1 के बाद 1 2 3 6 4 0 5 6 6 0. That is known as binary 62. value. ओके, कुछ समझ में आया? यस सर, और बाकियों को भी तो बोलने दो. सॉरी सर. Yes, sir. Yes, sir. sir. किसी को डाउट है तो मैं नो सर. No, sir. ओके, चलिए. एक और एग्जांपल हम करते हैं. 18 को एक बार फिर से करते हैं ताकि हम इसी नंबर को सभी में हम कन्वर्ट करके दिखा सके आपको. बाइनरी तो क्लियर हो गया सबका? यस सर. अब हम 18 को ही Yes, sir. हाउ टू कन्वर्ट इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम. तो अगेन सेम नंबर सेम वी कैन यूज 18 we can use. Now in which system we want to convert? In octal number system. So what is the base of octal? 8. 8. That's Eight. why we can divide from 8. 8 into 2 16. Remainder is 2. Value is less than 8. Then Yes. process is stopped. Then Two, its octal value is 2 2 2 2. Clear? यस सर. Now हम इसमें एक और यूज करते हैं. इसमें अनदर नंबर इज, कोई नंबर बोलो. 84 26. 80. 80. चलिए 80 किस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है? ऑक्टल. ऑक्टल. तो डिवाइड हम किससे करेंगे? 8 8 से. 8 से 8. यहाँ पर 10. क्या लिखे? 10. 10 into 8 80. Zero. Remainder is 0. Again this value is greater than base value. That Yes, means you want to execute one more times, we can Yes. use 8 1 2 2. What is the 1 value 2 is? 1 2 0 120. 120. Yes, clear है? यस सर. Yes, sir. चलिए अब नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल. Sir, can you show the octal ones of 18? 18. सर एक Okay. बार ये पहले से ये स्लाइड दिखा दो, थोड़ी ऊपर कर दो. सर ऑक्टल टू डेसिमल कैसे करेंगे? सब बता रहा हूँ बच्चे, वेट करना. वेट कर, एक ही बार में सभी बता दूं? नहीं 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 सर, नहीं सर. यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर. 18 का बाइनरी वैल्यू क्या आया था, याद है किसी को? हाँ सर 18 का था Binary है. 10010. 1 0 0 1 0 0 1 0 10010.
हम इसे भी चेक भी करना बताएंगे आपको, इट्स करेक्ट और रॉन्ग। ओके, अब यस सर। अब हम नेक्स्ट करें हेक्साडेसिमल। पहले हम लोग 18 का करते हैं। सर आपने इससे पहले क्या करवाया था, ये बाइनरी वगैरह से पहले? अगर तुम ब्लॉक 1 की यूनिट 1 कहानियां बताए थे अभी, ओके और सिर्फ किताब पढ़ लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे अब हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल पहले हम अगेन 18 को यूज करते हैं। वी कैन यूज 18। What is the base of hexadecimal number? 16। तो हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे? We can divide from 16। Yes, very good. 16, 1, and here is 2. Then what is the hexadecimal value? 1 2 1 सर, सर 1 सर, 16 18 1 टाइम्स जाएगा। क्या? फिर से बोलो। सर ये 18 16 में कितना डिवाइड होता है? एक बार ना सर। हाँ, क्योंकि दिस वैल्यू इज लेस देन बेस वैल्यू, दैट्स व्हाई 1 टाइम्स वैल्यू डिवाइडेड। ये 1 and ओके, तो दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख देते हैं इट्स वैल्यू इज 12। क्लियर? अब नाउ नेक्स्ट नंबर इज हेक्साडेसिमल का हम एक और एग्जांपल करते हैं। नहीं, ये नंबर मैं खुद डिसाइड करूंगा। तुम लोगों ने बहुत डिसाइड कर लिया। नाउ इट्स 45। नाउ वी वांट टू कन्वर्ट इनटू हेक्साडेसिमल। ओके, नाउ हेक्साडेसिमल इट्स बेस वैल्यू इज 16। वेरी गुड, मैं 18 टाइप कर रहा था। Now 16. What is the value? Sir, Here we can 2D 2. And here we can say 13। 13. That means D। That means की बाइनरी वैल्यू क्या होगी? D सी, सॉरी D होगी ना? सी इक्वल टू 10 D 11 C 2 हाँ D D का मीन्स D 13। तो नॉर्मली आप 13, नॉर्मली हम लोग क्या गलती क्या करते हो एग्जाम में? नॉर्मली ये गलती करते हो, ये लिख दोगे 213। ऐसे आप बाइनरी लोग के अंदर ये दिया होता है ना, ये आप लोग लिख के आ जाते हो। मैंने कई बच्चों का देखा है ये, लेकिन ऐसे नहीं लिखते हैं। नेवर राइट लाइक दिस। सर तो फिर 2 का क्या हुआ? 2D होगा ना? just wait 2 13 in hexadecimal we can 13 means D, so that means it is represented as D, so that means answer is 2D। okay, यस सर। ये यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। नाउ अब हम यानी अब किसी भी नंबर को आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड।
अब चलिए, अब मैं इसको थोड़ा रब कर दूं। अब हम लोग रिवर्स करते हैं, यानी हम इससे अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल. Yes, now we are doing reverse operations. पहले हम लोग क्या किए, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल. नाउ वी आर गोइंग टू रिवर्स द ऑपरेशन, यानी बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल नहीं बाइनरी टू डेसिमल, फिर ऑक्टल टू डेसिमल अगेन एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल. ओके, अगेन प्रोसेस इज रिमेन सेम. एक प्रोसेस जो बता रहा हूं वही प्रोसेस सभी के लिए एप्लीकेबल होगा. ठीक है, नाउ सी. देखिए, वी आर डूइंग रिवर्स ऑपरेशन बाइनरी टू डेसिमल. तो बाइनरी नंबर इज 1 0 0 1 0. दिस इज द बाइनरी नंबर. आप लोगों ने एरे पढ़ा है. व्हाट इज एरे? एरे में आप लोग इंडेक्सिंग करते थे, याद है? एरे की इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है? एरे इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है जीरो से जीरो से तो यहां भी हम लोग वी कैन स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्सिंग. ठीक है, तो हम यहां पे लिख देते हैं इंडेक्स. इंडेक्स, इंडेक्सिंग ऑलवेज इधर से स्टार्ट नहीं करके हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे. दैट मीन इट्स 0 1 2 3 4. अगर इसके बाद भी डिजिट्स होते तो 5 6 ऑन चलता जाता. क्लियर? यस सर. सबका क्लियर है? यस सर. ओके, नाउ अब इसके बाद हम यहां पे लिखेंगे इट मीन्स 1 इंटू, इसकी इंडेक्सिंग क्या है 4 टू द पावर 4. ओके, प्लस इसकी इंडेक्सिंग क्या है 0 into 2 raised to power 3. टू द पावर 3 प्लस, सर ये बाइनरी का है ना? यस, 0 into 2 द पावर 2. 2 प्लस 1 1 into into 2 the power 1. 2 ही रहने दे. प्लस 0 into 0 की पावर 0. ओके, यहां तक क्लियर है? और जीरो. यस सर. ये स्टेप्स क्लियर है? यस सर. नाउ Yes sir. now tell me what is the value of 2 the power 4? That means its value is 16. 16. 16 16 into 1 16. 16 plus 2 the power 3 2 the power 3, that means 8 into 0. 0. जीरो. सारे जीरो हो गए. 2 the power 2 4 into 0. Next value 2 the power 1 2 into 1 2 2 plus 2 the 0 power 0 1. 2 the power 1 0 into 1 0 into 1. 0. किसने बोला 1? 2 का पावर 0 1. हाँ, 1 into 0 0. 0. that means its value is 0. अब इसको सम करो. 18. 18 18 सेम वैल्यू आ गई. Yes यस sir. सर. यस सर. तो दैट मीन जो मैंने बताया वो सही बताया ना. यस सर. Yes sir. Yes sir. अभी इसमें किसी को डाउट है? No sir. No sir. No, sir. No sir. लास्ट इसे सेम रब में कर भी दो. था सर. यस सर.
अभी इसके आगे अभी फिर आ रहे हैं ना अभी फर्स्ट सेमेस्टर में इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं आए होंगे। सर आए थे। शायद आया था सर, आया था एक दो सर, एक दो आए थे। नंबर में एक क्वेश्चन आया नंबर था वाले सर 2 मार्क्स का। हाँ, यहाँ पे आएंगे 8 से 10 मार्क्स के। अभी इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सब कुछ होगा। अच्छा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ऑक्टल से करें। हाँ सर। यस सर। अब तो आप लोग भी कर लोगे। यस सर। नहीं सर, तो दो बारी में कन्वर्ट करना होगा ना। मैं एक बार बता देता हूँ। नंबर दो से नंबर। चलिए, अब हम लोग इस नंबर को कन्वर्ट करते हैं 22 को 22 को कन्वर्ट करेंगे इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये काइंडली किस नंबर सिस्टम में है? नंबर इज ऑक्टल नंबर से। तो सबसे फर्स्ट स्टेज क्या करते थे? विल डू इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग किधर से होगी? राइट साइड। लेफ्ट टू Right to राइट, left. लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? Right, राइट टू लेफ्ट। right to That is left. 0 1 0 0 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पहले क्या लिखते थे? ये नंबर लिखते थे 1 इंटू, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ क्या लिखेंगे? 2 इंटू व्हाट इज द बेस? 8 to the power 1. 8 to the power 1 बेस 8 to the power 1 प्लस 2 into 2 8 to the power 0 2 into 8 की पावर 0। then 8 पे पावर n into 2 that means 16। 8 पे पावर 0, 8 पे पावर 0 1 1 1 अरे 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 into अरे 2 2 हो गया आएगा उसका रेटिंग। हो गया। रेटिंग हो गया। सही है। यस सर। सही है। Sir, how is it become 2? यस प्रशांत क्या बोले? सर ये 2 into 8 की पावर 0 में तो 0 ही वैल्यू होनी चाहिए। किसी भी नंबर का पावर 0 होती है डेट मीन्स इट्स वैल्यू इज 1। वन किसी भी नंबर पे a टू द पावर 0 डेट मीन्स 1, 5 की पावर 0 डेट मीन्स 1। किसी भी डिजिट पे पावर में 0 रहे तो वैल्यू 1। ठीक है। सर अगर 2 की पावर भी 0 करेंगे तो वो भी 1 आएगा कैसे? हाँ जी, लेकिन प्रीवियस केस में क्या था? 0 इंटू टू द पावर 1 था टू द पावर 0। तो 0 इंटू टू द पावर 0, टू द पावर 0 मीन्स 1, 1 इंटू 0 इंटू 1 0 हो गया। That's ओके हो सर, गया? अंडरस्टूड। क्लियर है? यस सर। ओके, नाउ हेक्साडेसिमल बताने की जरूरत है कि कर लोगे? कर लिया सर। कर लिया? यस सर। तो दिखा दो। हाँ दिखा दो, स्क्रीन पे दिखा सकते हो? और क्या? एनोटेशन का वो नहीं है सर। अच्छा बच्चे सुबह में कैसे बचोगे? सेम सर है ना। अभी तो मैं राइटिंग पेन यूज कर रहा हूँ तो मैं लिख दे रहा हूँ। सर चलिए, तो मैं किस पे करके दिखाऊंगा? कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं इसमें सीओ में आपसे शेयर करने के लिए बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ क्लासेस बहुत कम है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, हेक्साडेसिमल आपके लिए दे देता हूँ, आप लोग करोगे। अब यहाँ पे देखिए, अच्छा
ये अभी मैंने आपको डेसिमल वाला पार्ट नहीं बताया है, डेसिमल वाला नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। अब इसके कुछ शॉर्टकट भी होते हैं। और सर बीसीडी और वो वाला भी बाकी है। बीसीडी यहाँ पे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, शॉर्टकट ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस ना आपके ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में आते हैं, वो भी आपको वो भी बता देता हूँ कुछ। चलिए, जैसे अब तो आपने ये देख लिया, अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी होते हैं कि कोई पार्टिकुलर नंबर है, लाइक ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में हमने नंबर लिख दिया है वन, ये नंबर है, इट्स ए नंबर इज बाइनरी। नाउ इसे कन्वर्ट करने हैं हमें ऑक्टल में। there is a two way to convert binary to octal. the first method से पहले इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, then we can convert into octal number. first method says just convert binary number into decimal number, then convert into octal number. ये तो कर सकते हो? Yes, sir. But another is shortcut method. ओके तो शॉर्टकट मेथड यूज करने के लिए कुछ चीजें आपको ऑलरेडी रिमेंबर होनी चाहिए, लाइक दिस थिंग्स। 0 1 2 3 हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करनी है, तो ऑक्टल मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर क्या होती है? व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर? 7। ठीक, ओके 3 4 5 6 7। अगर हम इसकी बाइनरी वैल्यू बात करें तो ये कितनी होगी? 000। इसकी क्या होगा? 111। इसकी क्या होगी? 10 0 1 1 0 1 0 0 1 1 100। इसकी वैल्यू क्या होगी? 101 110 एंड 111। ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू बाइनरी नंबर इनटू ऑक्टल नंबर, देन वी ग्रुपिंग इनटू थ्री का ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुप इनटू 3 एलिमेंट्स एट ए टाइम। दैट मीन्स यहां पे देखिए, हम इनका एक ग्रुप बनाए, इनका एक ग्रुप बनाए, फिर इनका एक ग्रुप बनाए। ठीक, ओके। अब देखिए ट्रिपल 1 मीन्स क्या होता है? ट्रिपल 1 7। 0 1 0 का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 0? 5। दैट मीन्स ऑक्टल नंबर इज 5 to 7 5 to 7 यस, वेरी गुड। इजी है ना? yes sir Yes, sir. No. Sir, yes sir sir, can you explain it again? यस यस, बिल्कुल, आपने कहा तो बिल्कुल करेंगे, डोंट वरी। अब हम एक नया एग्जांपल लेते हैं। सर जैसे 5 डिजिट नंबर होगा तो उसके लिए क्या करेंगे? वही लेंगे, डोंट वरी बच्चे। अब यहाँ पे नंबर ले रहे हैं हम। Yes, no. ठीक है, हम इस नंबर को हमें ये करना है, ये नंबर हमारा, ये ऐसे और कर लेते हैं, ये डिजिट्स है। नाउ इस डिजिट्स को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? ऑक्टल में। ऑक्टल मीन्स वी आर ग्रुपिंग इनटू 3, तो हम 3 की ग्रुपिंग करेंगे। अब यहाँ पे ग्रुपिंग करते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ ग्रुपिंग करें, पहला एलिमेंट ये हो गया 3, नेक्स्ट 3,
नेक्स्ट थ्री, एक मिनट रुक जाओ, अभी रुक जाओ, इसमें हमारी ऑब्जेक्टिव पूरी नहीं हुई, इसलिए हम यहाँ पे एक और 1 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंगल 1 बच गया, तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम ग्रुपिंग करेंगे। अगर हम इस डिजिट से पहले अगर हम 0 मेंशन कर दें, कोई दिक्कत? नो सर। 0 का कोई मीनिंग नहीं है, तो हम No. इसकी हमने ग्रुपिंग कर दी। सर फिर ये नंबर ऐसे होगा ना 3 4 5 5 3 ऑक्टल। रुक जा बच्चे, रुक जा। अब यहाँ पे नंबर लिखिए 011, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? 3 3 101 3 101 5 5 101 5 100 4 001 1 1, so its octal number is 14553. क्लियर? यस सर। यस सर। अगर मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो सिमिलरली 16 हम यहाँ पे 14 तक। हम यहाँ 3 की ग्रुपिंग क्यों कर रहे हैं? Why you are grouping into 3 elements? Because the octal highest number is 7, और 7 को स्टोर करने के लिए हमें कितने बिट्स चाहिए? 3 बिट्स। 3 बिट्स है सर, उसमें 4 करना होगा। And if you want to convert into hexadecimal highest value is 16, and 16 को स्टोर करने के लिए हमें कितने बिट्स चाहिए? 4 बिट्स चाहिए। 4 बिट्स। तो उसके हिसाब से हम ग्रुपिंग किस तरह से करेंगे? 4 का ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है? यस सर, और जो बाकी बच जाएगा उससे पहले 0 0 लगा करके 4 पूरा करेंगे, है ना सर? यस, वेरी गुड। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? यस सर, यस सर। तो 2-4 अपने से एग्जांपल इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें बताएंगे डेसिमल नंबर्स का। अभी आपने यूज किया ना जैसे लाइक ये सब फ्रैक्शन वाला नंबर। अगर 12.33 है, इट्स अ डेसिमल नंबर, तो इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले जो डेसिमल के बाद वाला है उसको करेंगे, उसके बाद में उस दिन ही बताएंगे। ठीक है? ओके फिर इसका शॉर्टकट भी बताएंगे, फिर इसका रिवर्स भी बताएंगे, और साथ में एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड लॉजिक डायग्राम भी करेंगे। ठीक है? ओके सर। ओके, एनी डाउट? कुछ पूछना है तो बोलो। सर इसका नेक्स्ट क्लास, एक सेकंड, कब है सर? देख लेना बच्चे। सर यस, आपने ये स्टार्ट कराने से पहले क्या करवाया था? वो बीच में मैं एक्चुअली बाहर गई थी। नंबर सिस्टम से पहले ये बेसिक बताए थे, व्हाट इज कंप्यूटर के जनरेशंस, ये सब सारे टॉपिक डिस्कस किए थे। उसके बाद में कैश मेमोरी के बाद में आप तुरंत इस पे आ गए। हाँ, यूनिट भी तो था। यूनिट 1 हमने कवर किया था। ओके सर। ठीक है? यस, किसने क्या लिखा है? नो मैसेज में। ये COA का क्लास है ना सर? हाँ, तो S21 को है सर, परसों। सर 21 को सी और पाइथन के भी 5 बजे ही क्लास है। ये सर ये दिक्कत है एक सर, पता नहीं कैसे शेड्यूल कर दिया सर। कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट कब है ये नेक्स्ट क्लास? 21 को है, परसों। सर परसों ट्यूसडे। आप कल ले लो। क्या? आप कल ले लो ये वाला सेशन। मैं अभी लास्ट में लूंगा इसको, जो लास्ट सेशन है ना उसके बाद मैं आपको दे दूंगा एक दिन। ठीक है? ओके सर। ठीक है, मैं अपना शेड्यूल देख के फिर उसके बाद कर दूंगा। ठीक है? नो सर कर रहा है। क्या? कोई मैसेज कर रहा है, नो सर।
हाँ बच्चे, ये नो सर क्या लिखे हो? सर आपने जो बताया कि जैसे बाइनरी को आपने ऑक्टल में वो कन्वर्ट किया था, ठीक है, जैसे 0 का आपने 000 लिया, 1 का जो बाइनरी था 1001 लिया। अब जो हाँ। हेक्साडेसिमल में सर जो 4 का पेयर बनाना है, जैसे 444 का पेयर जो बनाना है, तो उसमें फिर जो आएंगे नंबर्स उसमें कैसे होगा फिर बाइनरी नंबर? जैसे अगर 4 डिजिट का बनता है तो 001 आ गया, तो इसको कौन सा नंबर देंगे फिर? ओके, क्या नाम है आपका? कन्हैया। कन्हैया। स्क्रीन शेयर करो, वर्ड ओपन करो, MS वर्ड ओपन करो। तो फोन है सर, फोन। ओए होए। चल, इसके लिए सिंपल सा तरीका होता है। कैमरा ऑफ करो, पहले कैमरा ऑफ करो। एक मिनट। देखो मैं बता देता हूँ आपको कैसे यूज करते हैं। हम्म। यहाँ पे देखो, हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, कितने की पेयर बननी चाहिए? 16। तो 16 के लिए अगर 4 का बनाना है तो हम 16 है तो 4 डिजिट्स है, तो फोर के लिए हमारे पास कितने चाहिए? 16 रो बनेंगे, ठीक है। 16 तो पहले में हम 8 0 लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 बार 1 लिखिए। काउंट कर लो, 8 बार है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है। ठीक है, अब हमारे पास अब कितने बिट बचे? 3 बिट्स। 3 बिट्स आर रिमेनिंग। 4 बिट्स से फर्स्ट बिट हमने फिल कर दिया। हाँ। अब नेक्स्ट बिट हम यहाँ फिल करते हैं। तो अब यहाँ पे 4 टाइम 0 3, 4 टाइम 0, फिर 4 टाइम्स 1, फिर 4 टाइम 0, 4 टाइम 1, 4 टाइम 1। ओके, अब कितने बिट्स बचे? 2 बिट्स। 2 बिट्स, तो दैट मीन्स 2 टाइम्स 0 1 1। हाँ। हो गया। हाँ। अब हमारे पास कितने बिट? 1 बिट बचा। 1 बिट के लिखेंगे 0 0 1 0 1 0। देख लेना सीक्वेंस सही है कि नहीं। हो गया। हाँ हो गया सर। अब यहाँ पे देखो, ये 0 0 मीन्स क्या हुआ? इसकी बाइनरी वैल्यू क्या हो गई? 0। हाँ इसकी 0, 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन करते जाओ। ABCD। तो 9 के 10 को क्या लिखोगे? ABCD। ठीक है, हाँ। कर लोगे? यस सर, यस सर, यस सर। 1 मिनट से स्क्रीनशॉट ले लिया। हो गया सर। हो गया, चलो वेरी गुड। थैंक यू सर। एनीथिंग एल्स? नो सर। ओके, थैंक यू। थैंक्स सर, थैंक्स। बाय सर। थैंक यू सर। बाय।